everybody. This is Hexy Dexy Box, and today we are here for a meeting and talk on a performance art, and it is organized by Sufi. And now I'm going to tell something about our Hexy Dexy Box. Hexy Dexy Box is a collective, a catalyst assembly for head-to-head interactions, collaboration, and creative gossip, with the spirit of gathering community in a metro city. We like to play with the nonsensical form of verbal expression of art work as a performance against a social justice. It made an approach of a sensible gamble of behavioral performance art as well as aesthetic diaspora. Diaspora to fraternity is a long distance made a breed between the behavioral approach as a social practice, embedding is an energy, might, potency, vigor, muscle that act as a opposite direction of a social discourse in a globe. Different forms emerge through scrapping, excoriation between the complex reality of gender and sexuality in modern South Asia, especially at the intersection of cultural and division. So now Satadul sir will say about performance art. Welcome to everyone. I'm the director and creator of ZXC Box. Thank you to Sufi, curated this event, body, choice and space. And the all participants, although without the participant we cannot do the success. So I cannot say much. I cannot say much about ourselves, but I love to say performance art, the form is very much abstract, because all the time people are confused about performance art and performing art. If you say that I'm performance artist, who are dancer, they also say I'm the performance artist. They performer, but they say that I'm performance artist. So all the time there is too much confusion, conflict. So we thought that we do not choose this both form. We just say that behavior art. And why we say behavior art? Because I feel performance art is vernacular narrative. Like whatever you perform through your vein, through your mind, there is no script, no as such preparation, but there is a aesthetic value, very important role. There is a lot of research before the your work. You can go to the main topics, and you can do library work, you can do the internet work, whatever. You can find out the data, and all the data in your mind. And when you perform, your body instruct you. Okay, you are a visual artist, you have a certain degree, so you can understand that what is the topics and how and why you perform and what places perform. So that's the basic things. So there is a thin line between performer and performance artist. So always whenever people are going to attempt the performance art, is maximum time it will be like a theater, choreography, the whole thing. So this is very confusion. So all the time my advice, just think the very easy topics, mundane life, and you can do all the thing 360 opposite. Like you brush the teeth, but someday just in the performance art you just brush the nail. Okay, so then the curiosity going to come up, what going on and why you doing. So these kind of ticks there, like and you can always choose the unusual object. Okay, the object also make a curiosity, and there is no dress, but you can create your own dress, you can make your own vocabulary, and there is a many sections. We can talk about that later. So any questions or anything I can clear up and talk to us. I think performance art in India, performance artists India is very small, and you can shout everybody is dancer, singer, cinematographer, photographer, choreographer, but very few performance artists. So this is very strong point for us, and we can make a very strong platform. So that's why we are making our performance marathon. We planning to do each month. We can sit and you can talk and you perform each unknown place, explore the possibility and vocabulary, and you can learn more. So that is our motto and that is our plan. Okay, I just am passing the mic to
Shufi was curated very nice project. Shufi is handling 2 projects, by the way. One is international project. We give a call out because long time we are not doing much, so we thought that we have to do the call out. The same topics, body, choice, space. So anybody can send a video, and we have a list of juries. So we send the videos, all videos to them, and whatever the video is selected, we can 20 or 30 video we can up with their names, with their bio, with their social media. So people can try for that. People can try to do one like work. So we want people can active. So there is a two section. One is mentor section. Mentor section, all mentor are going to make a video on that topics. So that is our learning. That the same topics, how they attempt and how they do the video. And one section is younger and one is senior. So 3 section in the whole things. So these things. So now Shufi. Thank you all of you for joining us today's evening. We are gathered here to talk and discuss performance art, as our group is dedicated to promote the practice of this new media in India, and we are currently working on promoting this genre of art among students, artists, and public. I would like to speak at the end. I think first let the artists speak about their. Okay, so our subject was space, body, and choice. For body, it is not just your physical human being's body. It could be anything like your society, your workplace, your educational institutions, anything. It could be anything. And for choices, it could be your fashion, your language, your food, what you eat, how you dress, like, and where are the places you go, anything. So yeah, I think let them speak about their own works. I would like to request Salman अभी to speak about his work. थैंक यू। अभी मतलब कुछ पिछले दिनों की बात है, 13 तारीख में, ठीक, 13 तारीख में जो परफॉर्मेंस हुआ और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और सबका अलग अलग मौजू, अलग अलग टॉपिक था। बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा। और दिल्ली के अंदर शायद जो हमारा एक्सपीरियंस हम अपना बता रहे हैं, दिल्ली के अंदर बहुत दिनों बाद ऐसा मतलब इवेंट भी देखने को मिला और एंजॉय किया, बहुत अच्छा रहा। पहला परफॉर्मेंस हमारा मुंबई में 2012 में किया था। बात आएगी कि मतलब टाइटल क्या था। जो परफॉर्मेंस हुआ मंडी हाउस में 13 तारीख को, सोच रहे थे, कई बार सोचा कि टाइटल क्या होना चाहिए, क्या रखें विषय। दरअसल क्या कि जो हम 8-10 साल से परफॉर्मेंस के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, बेरोज़गारी, गरीबी, इन सारी चीज़ों को लेकर हम परफॉर्मेंस मतलब कर रहे थे। ये पिछले गुज़िश्ता दिनों में जो परफॉर्मेंस किया 13 तारीख को, उसमें हमने शिक्षा को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके और धार्मिक चीज़ों को भी ले गए कि जो धार्मिक मतलब किस तरीके से लोग आपस में लड़ रहे हैं, शिक्षा की ओर ध्यान ना करके उसे मतलब ढक रहे हैं। उन सारी चीज़ों को लेके परफॉर्मेंस किया, लोग जुड़े और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा। और हम धन्यवाद, शुक्रिया बोलना चाहते हेक्सी बॉक्स और सूफी भाई को, जिन्होंने इतना बढ़िया से जो है शो को क्यूरेट किया। और हम अपने तमाम सम्मानित साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो पहले मैं शुरू करना चाहूँगी, जो सताद्रु जैसे बोल रहे थे कि परफॉर्मिंग आर्ट और परफॉर्मेंस आर्ट, आर्ट परफॉर्मेंस, लाइव आर्ट में बहुत अंतर है। नृत्य,
नाटक, संगीत, इवन चित्रकला भी एक वे में परफॉर्मेटिव हो सकता है। तो आर्ट परफॉर्मेंस जो है वो ऑलरेडी वो बता चुके हैं, उसमें एक्शन पेंटिंग भी आता है, उसमें एटीट्यूड भी आता है, उसमें टेक्स्ट भी आता है, उसमें लाइव आर्ट भी आता है और बहुत कुछ नहीं भी आता है। अगर कुछ ना समझ आए वो भी एक तरह का वो ही परफॉर्मेंस आर्ट है और नहीं भी है। जो आर्ट परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो मेथोडोलॉजीज़ हैं और जो प्रोसेसेस हैं उससे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट भी होता है, उससे कहीं ना कहीं सिमिलर भी होता है। और आर्ट परफॉर्मेंस की जो प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। जैसे संगीत में बोला जाता है, अगर आप पूरी तरह बहुत आम भाषा में अपने आप को फ्री नहीं करेंगे तो आप रागों में को कैसे गा पाएंगे। तो वो जो प्रोसेस है फ्री करने का, ऑथेंटिक सेल्फ एज इट इज़, वो एक प्रोसेस है जो एक जॉनर बन के आ गया है परफॉर्मेंस आर्ट का। और जो लास्ट टाइम मेरी परफॉर्मेंस नहीं बोलना चाहूँगी, नहीं तो अगर उसको परफॉर्मेंस बोलूँगी तो फिर वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो जाएगा, तो उसको मैं क्या बोलूँ। जो मेरा एक्सप्रेशन था इन द मीडियम ऑफ परफॉर्मेंस, वो उसमें जो टेक्निक्स थी वो पेंटिंग भी थी, उसमें कुछ मूवमेंट्स थी वो शायद ट्रेडिशनल डांस से मैंने भी ली थी। अब जो है वो मेरी ग्रामर बन चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ट्रेडिशनल कथक में बोला जाता है, एक चीज़ होती है उपज। इट इज़ द ओनली इंडियन क्लासिकल डांस जहाँ पर आप अपने स्टेप्स बना सकते हैं एक बार आपके पास ग्रामर हो। बाकी क्लासिकल डांस में एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट और स्ट्रिक्ट स्कूल्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उपज है वो इन इट सेल्फ, जब मैं छोटी थी मुझे कथक इसलिए पसंद था क्योंकि उसमें एक फ्रीडम सी लगती थी मुझे। एंड मुझे लगता है कि वो जो उपज का स्पेस है उससे कहीं ना कहीं मैं एक तरीके से आर्ट परफॉर्मेंस को से रिलेट कर पाई थी, चाहे मुझे उसकी टर्मिनोलॉजी ना पता थी पहले। और कहीं ना कहीं ये जो आइडेंटिटी है कि अगर आप एक आर्ट मीडियम को यूज़ करते हैं तो आप एक मिनिएचर आर्टिस्ट बन जाते हैं, या पेंटर बन जाते हैं, या कथक डांसर बन जाते हैं, या डांसर बन जाते हैं। तो मीडियम की जो आइडेंटिटी है वो जुड़ जाती है। उसको एक्सेप्ट ना करना, पर उसकी ग्रामर को अब्जॉर्ब करना और एज इट इज़ एक्सप्रेस करना एक फ़ाइन आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक मैं अभी उस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। और जो एक आइडेंटिटी है एक आर्टिस्ट की, उसको भी छोड़ने का, और मे बी कोई मीडियम से आर्ट परफॉर्मेंस ना करने का, क्या ये संभव है। तो ये मेरे माइंड में बहुत बातें चलती हैं। और जो अभी रीसेंट परफॉर्मेंस था वो था अर्धनारीश्वर पर, जो इंटरनल डायलॉग्स हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो मैं रिकग्नाइज़ करती हूँ जिससे, और जो आज के दौर पे जैसे मैं अर्धनारीश्वर को शायद देखना चाहूँगी अपने अंदर, और उस आइडेंटिटी को भी लूज़ करना चाहूँगी। तो उसको भी मैं एक्सप्लोर कर रही थी। तो एक पब्लिक स्पेस में जब मैं वो कर रही थी तो लोगों के बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस थे जो एक थिएट्रिकल सेटिंग में नहीं मिलते, क्योंकि वो एक आप कैरेक्टर के अंदर होते हो एंड यू हैव टू एब्सोल्युटली हेट थिएटर टू, और नॉट हेट थिएटर बट नॉट बी एक्टिंग टू बी डूइंग आर्ट परफॉर्मेंस।
or not be dancing to doing art performance, even if the grammar is there. And तो लोगों के बहुत अलग अलग ये जो रिएक्शंस थे कि ये तो कपड़े गंदे हो गए, ये इतने महंगे कैनवस को क्यों फाड़ा. तो ये जो एक इंटरेक्शन थी बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए. एंड इस चीज़ को कि आर्ट जब सड़क पे आता है, जो सबके सामने आता है, तो उसका अनुभव एक जो उधर दर्शक हैं और जो उधर एक पर्सन है जो आर्ट परफॉर्मेंस में एंगेज कर रहा है, उसका भी दायरा परफॉर्म करने का थोड़ा चेंज हो जाता है. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंड आई थिंक ये और स्पेसेस में होएगा तो और मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो स्पेस थी इसमें बहुत सारे थिएटर के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर थिएटर, डांस, म्यूज़िक, हाँ हाँ, उनके दिमाग में वो प्री लैंग्वेज जो है वो थिएटर, म्यूज़िक और डांस की है. एंड वो आर्ट परफॉर्मेंस के साथ एंगेज कर रहे हैं. और ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि इधर एक बस स्टैंड है. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी ऑडियंस थी. तो वो कैसे आर्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, उनका भी एक अलग तरीका था. तो आई थिंक और एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा. Evening to all of you, and thank you to all of you to bring here my recent performance on loneliness. लोनलीनेस सबका एक पार्ट होता है लाइफ का. हम हज़ारों लोगों के बीच में चलते हैं और हज़ारों लोगों के बीच में चलते हैं, लेकिन हम फील करते हैं अकेले में, और हमें बहुत उससे पैरेलल है एंग्जाइटी भी और फ्रस्ट्रेशन भी. हम प्यार चाहते हैं, हम ढूंढते हैं कि एक दूसरे से प्यार से रहें. हम एक दूसरे में प्यार ढूंढते हैं, पर वो हमें कई बार मिलता नहीं है. हम बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हैं, राइट. और ये इस टॉपिक के ऊपर मैंने परफॉर्मेंस आर्ट करी थी मंडी हाउस में, और मुझे ऐसा फील हुआ कि हम इतना ढूंढते हैं लोगों से बात करने में, इतना घबराते हैं बात करने में, कई बार हम उस चीज़ को ख़त्म ही कर देते हैं. हम अकेले ही रह जाते हैं. और ये फैक्ट है, दिस इज़ द फैक्ट कि हमें जो कुछ करना है, हमें कोई हेल्प करनी है तो वो खुद से ही करनी है. सो दिस इज़ माय टॉपिक. और परफॉर्मेंस आर्ट मेरे लिए नवा है अभी, और मुझे अब तक यही जानने को मिला है या फिर यही सीखने को मिला है कि परफॉर्मेंस आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट इज़ नॉट इक्वल. वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है जॉनर्स. और लाइक डांस, थिएटर, सिंगिंग, लिटरेचर आर्ट वो अलग है. परफॉर्मेंस आर्ट इंडिया में नवा है. इसको सीख के अपनी गाइडेंस से, सतादुर सर की हेल्प से और सूफ़ी की हेल्प से जो इन्होंने क्रिएट किया मंडी हाउस में, सो इससे रिलेटेड और जानने को मिलेगा. आगे और परफॉर्मेंस करूँगा, वर्कशॉप्स कंडक्ट होंगी आगे. सो दिस इज़ माय टेक ऑन दिस. थैंक यू. Good evening, everybody. Yes, I can say performance art is a newborn baby in India, because it has literally a less understanding, and people are really confused about performing art and performance art. So I want to tell something like recently I written my dissertation on performance art. The reason behind to write a dissertation is that I found very less content about Indian performance artists, like when it is started and who are the artists and why they do and what are the understandings. So I almost took interviews from 10 to 12 artists among India, and each and every artist has a different understanding about that. So slowly with the help of Satadu sir, I got to know, and I thought to compile a book related with that upcoming generation will get to know about that, and they can work for that. So I written, and then after the main sad part is that in the colleges, in the fine art colleges especially, people don't know about performance art. They believe that performance art means performing art, like dance, theatre, drama. They don't know. They study in the books, they teach to their students, but still there are lack.
So this was the reason, and I believe that this is a way in which we can express our thoughts in a few minutes, few seconds, without using a canvas, without carving a stone. So it is an easy way to express and spread knowledge among the people. And my recent performance was about identity. In that performance I applied 2 colors on my body, and how different colors can give a different impact on the people. So that was my understanding about performance art, and I believe that performance art is a live art, because when a video stopped, it become a video art. When photo clicked, after that it become a performative picture. But the time in which performance is going on, that is a real performance art. So I can say it is a live art. Now, Miss Sir, I have a request from Miss Sir. Miss Sir have a own organization called Young Heart. Young Heart. Now I'm not here. It's a new organization. It's called Yeah, Udat. yeah. Could you say about your organization Yeah. and you have Before a that, I'm long to introduce association, myself. long association with performance art. You do performance art, you also write, so you can have some give the ideas and glimpses. Yes. Before that, I'm Umesh Nayak. Basically, I'm doing some video art, performative video art, documentation of performance art. My sound is like this. I cannot speak it Okay. loudly. So I'm sorry. Okay. I'm qualified fine arts basically, and I'm doing research on art and performance art basically. Last 10 to 15 years I'm working on performance art, documentation work, and some doing performance also, performative video also, collecting some information in Indian performance artists and different area, different geography and different persons. So this is my practice now. Before that, when I was doing PhD, I'm doing my thesis was basically primitive art practitioners, primitive art and primitive folk artists. Like they're doing whole life, they are doing same work. But when I moved to Delhi, I seen many different type of work. It's called contemporary art, yeah, modern art. What is the difference between them? Just a confusion created. After that, I see in 1999 there was a seminar, 2-day seminar organized by Guru. I saw the first time the performance art there. 5 or 6 artists of performance were there from Baroda, they are from Hyderabad, and one is from Royal College of Art. First time I saw the performance art, but I can't understand what is there. And 2010, when I saw all the Inder Salim and Nikhil Chopra and Mithu Sen and some Sadhu also, or another artist is from Dimple Shah and Saikia. Yes, some more artists are working. That I want to. Then I decided to document all the performance art. तो उससे पहले मैं कुछ पढ़ने की कोशिश किया. बेसिकली मैं उस टाइम परफॉर्मेंस आर्ट कभी करता नहीं था, लेकिन बहुत इंटरेस्ट था और मैं करता रहता था, लेकिन उसको एक प्रैक्टिस में नहीं लाता था जनरली. और उसको एक मैं स्टडी करने की कोशिश किया हिस्टोरिकली, जोग्राफिकली एंड बिहेवियर वाइज, जिसको बिहेवियरल आर्ट कहते हैं. इट्स समटाइम जस्टिफाई दिस प्रैक्टिसेस. तो जो हिस्टोरिकली है ये बेसिकली
पॉलिटिकल परफॉर्मेंस, पॉलिटिकल प्रैक्टिस के पर एक कोई बात आपको रखनी होती है तो थ्रो परफॉर्मेंस, थ्रो द बॉडी यू कैन एक्सप्रेस इजीली। तो ये बहुत पहले से ही पॉप आर्ट या दादाइज्म से स्टार्ट हो चुका था वेस्टर्न कंट्री में। इंडिया में उस तरह से कोई कंटेंट पोर नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे आप जंतर मंतर में देखे होंगे या फार्मर प्रोटेक्शन में देखें, बहुत सारे खुद ही उन्होंने परफॉर्मेंस किया। उनको आप कैटेगरी में ला सकते हैं, लेकिन इससे कॉल्ड पॉलिटिकल परफॉर्मेंस आर्ट। तो मैं हिस्टोरिकली बहुत सारे एरिया पे और बहुत टाइम फ्रेम में देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट है, और कभी ग्रुप में वर्क किया, कभी इंडिविजुअल ने भी वर्क किया। तो परफॉर्मेंस आर्ट वो एक टाइम है, एक स्पेस है, जो आपने टाइटल दिया हुआ है उससे इट्स अप्रोप्रिएट टू दिस परफॉर्मेंस आर्ट। बेसिकली टाइम एक इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कौन सी टाइम क्या ज़रूरत है और उस टाइम पे आपको क्या महसूस हो रहा है या आपका विजुअल क्या है, उसको जस्ट एक्सप्रेस करना है। और स्पेस कुछ भी हो सकता है, आपका चॉइस कुछ भी हो सकता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि लोग हो तभी आप परफॉर्मेंस करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेस चाहिए तो जब परफॉर्मेंस करें, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए इनर पार्ट एक इनर वेज है जो आपको आता है। लेकिन कभी कभी हम ये होता है कि हमें प्रैक्टिस में जब लाते हैं तब हमारे पास ग्रामर आ जाता है, तब हम परफॉर्मिंग आर्ट के साथ कनेक्टिविटी फील होता है कि हमें उसके अंदर कोई ग्रामर नहीं बनाएगा। जो लोग मान लो प्रोटेक्शन कर रहे हो या दादाजी टाइम में जो लोगों ने परफॉर्मेंस किया, उन्होंने कोई ग्रामर बना के नहीं किया, और अभी तक उसके ऊपर कई ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रामर नहीं डेवलप हुई है। जिन लोगों ने, चाहे आप मरीना वाल्वी जी को भी देखिए और भी जितने भी बड़े बड़े परफॉर्मेंस आर्टिस्ट, उनकी भी आप इंटरव्यू टॉक्स आप सुनेंगे ना, उसमें ऐसा कोई कॉमन बातें नहीं मिलेंगी। तो इसलिए कोई ग्रामर फिक्स नहीं हो। जैसे ऑयल पेंटिंग करते हैं या एक्रेलिक वर्क करते हैं तो ब्रश तक कंपलसरी होगा। कुछ लोग हाथ यूज़ कर लेते हैं या कुछ, लेकिन कैनवास मेन है। जैसे परफॉर्मेंस आर्ट में कोई चीज़ फिक्स नहीं है, इसके अंदर आप कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट्स ले सकते हैं, कोई भी स्पेस ले सकते हैं, कुछ भी ले आप, उसके ऊपर है, बस आपका चॉइस उस तरह से होना चाहिए। और उसके कभी कभी ऐसा भी बहुत सारे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के ऊपर मैं डॉक्यूमेंटेशन किया, लास्ट 15 ईयर्स उन्होंने 15 से पहले परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद वो परफॉर्मेंस करा ही नहीं, क्योंकि उनके मूड ही नहीं हुआ, मतलब उनके एक प्रैक्टिस में नहीं आए। ये फिर बाद में एक बार मैंने फिर जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए करने लगा, फिर बाद में एक बार रात को 12 बजे मुझे फ़ोन करता है कि उमेश तुम कैमरा लेके आ जाओगे मेरे पास। मैंने क्यों, क्या हुआ, तुम आ जाओ बस। तो 12-1 बजे मैं कहूँ, मैं नहीं आया ही नहीं। तो वो पता चला उन्होंने खुद ही मोबाइल पे शूट किया था लॉकडाउन के टाइम पे। तो फिर उन्होंने मुझे वीडियो शेयर किया कि मैंने ऐसे किया। मैं कहा सॉरी आई मिस्ड दिस। मतलब एक्चुअली क्या है कि परफॉर्मेंस आर्ट कभी भी किसी टाइम में से कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपका एक, जैसे मैं समझता हूँ, जैसे आपको एक प्यास लग रहा है ना, बुझाना है आपको। मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस आर्ट इस टाइप का ही है। और आप जहाँ पर कहीं पर आपको कंप्रोमाइज़ होता है या कहीं पर आप चूज़ करते हैं, चूज़ के दूसरे आपको प्यास लग रहा है, प्यास बुझाना है, उसके लिए सोचना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा कंपनी के मुझे कौन से बॉटल पे लेना है या क्या। बस प्यास आपका माइनर जो मेन पॉइंट है वो है। उसके बाद आप ऐड कर रहे हैं कि कौन से बॉटल ले, कौन से ग्लास से या कहाँ से मैं पानी लेऊँगा, तो इसका मतलब वो परफॉर्मिंग आर्ट हो गया। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड पे परफॉर्मिंग आर्ट का ऑलरेडी ग्रामर बना हुआ है, क्योंकि दे आर प्रैक्टिसिंग। परफॉर्मेंस आर्ट प्रैक्टिस नहीं करता, दिस इज द डिफरेंस आई थिंक। प्रैक्टिस नहीं करता, वो होता है, इसका कोई ऐसा नहीं है। वो बात ठीक है कि हम जब शूट करते हैं या वीडियो फोटोग्राफ्स लेते हैं, वो अलग के एक सेंस में पहुंच जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का वो कोई जरिया है ही नहीं परफॉर्मेंस आर्ट को। जैसे वो रात को वो कुछ मन हुआ उसको करने के लिए, मैं जाकर शूट करूँगा, वो तो उसी टाइम उसका हो गया, उसी, और कोई है ही नहीं। वो दीवारें उसके एविडेंस हैं जो उसने किया होगा, या जो भी उसका ऑब्जेक्ट्स होगा वो किया होगा। तो परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि एक बेस वही है। लेकिन उसके बाद हम जो प्रैक्टिस में आते हैं, प्रैक्टिस में बहुत सारे एरिया आ जाता है, पॉलिटिकल, इमोशनल कह सकते हो या साइकोलॉजिकल कह सकते हो, मीडियम वाइज कह सकते हो। बहुत सारे मीडियम मैंने इनको हर वक्त देखता आ रहा हूँ कि वो एक स्पेसिफिक मीडियम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जैसे लाइट और प्रिज्म से सारे लेके। कुछ लोग हैं कि, और जैसे अनुपम साई किया, वो सिर्फ पॉलिटिक्स को लेके, मतलब आजकल टाइम पे जो उसको डाउट्स लग रहा है उसको एक्सप्रेस करना होता है, वो तो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस हो गया।
Same thing Indrasalim also doing. So political performance. Same. Partition. वो एक एरिया से उसका बिलोंग करता है, उस एरिया का लैंग्वेज वो शेयर करता है. और भी लोग हैं जो साइकोलॉजिकली जो भी उनके प्रॉब्लम्स होता है उसके अंदर भी आता है, जेंडर इश्यूज भी आता है, फेमिनिज्म भी आता है. उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं. अब जैसे ये वो बोल रहे थे कि वो फार्मर्स या एजुकेशन के ऊपर कर रहे थे, तो इनडायरेक्टली पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस. तो ये हम ग्रामर बना रहे हैं, ऑलरेडी ग्रामर बता रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करने वाले लोग बहुत कम हैं इंडिया के अंदर, और बहुत कम समय है इसका. जैसे कहते हैं ना, बेबी है अभी फिलहाल बेबी है, लेकिन ये अभी नया भी नहीं है. प्रैक्टिस करने वाले कम इसलिए हैं, इसके पीछे मेन कारण यही है कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं मिलता है. इस प्रैक्टिस के ऊपर मिला नहीं अभी तो. इंडिया पे तो कोई परफॉर्मेंस आर्ट को एक इकोनॉमिकली जनरेट करने के लिए कोई गैलरी डेवलप नहीं हुई. ये क्या होता है कि जैसे मैंने बहुत बार परफॉर्मेंस आर्ट को एक वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ, तो वीडियो आर्ट की तरह से आता है. मेरे बहुत सारी जगह पे सिलेक्ट हुआ है वेस्टर्न कंट्री में. एक बार हमने जो रिवर फरीदाबाद में किए थे वो मेरा सिलेक्ट हुआ है, तो उसमें ही इन लोगों का ही वर्क है, इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया. लेकिन मैं कभी उन्होंने कभी जो मांगा कि मुझे कि आप इसका क्या है, आपका कॉपीराइट किसके ऊपर होगा, तो उन्होंने ये भी मांगा कि वो परफॉर्मेंस करने वाले लोगों का भी बताओ. मैंने कहा इस तरह से तो नहीं है, वीडियो आर्ट की तरह से जा सकता. मतलब दो तरीका वो बताया कि या तो परफॉर्मेंस आर्ट की तरह से ले रहे हो या वीडियो आर्ट की तरह से ले रहे हो. तब जाके परफॉर्मेंस आर्ट मानोगे तो मैं उस चीज़ से कॉपीराइट लूँगा, या वीडियो आर्ट कहोगे तो वीडियो आर्ट मुझसे लो. तो वो भी डाउट में रह गए. तो ये अभी तक क्या होता है कि जस्टिफाई नहीं हो पाता ये चीज़ें कि परफॉर्मेंस आर्ट की प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर की वजह से प्रैक्टिस में भी और उसके पीछे ग्रामर और उसके अंदर जो डेप्थनेस है वो ठीक से बैलेंस नहीं हो रहा. मुझे लगता है कि शायद ऐसा है. लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस है जो बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी तरह से, जो ना कोई चीज़ें की ज़रूरत नहीं है. आज जहाँ चाहो कुछ भी आपको मन में आए आप एक्सप्रेस कर सकते हो. लेकिन जिस टाइम आप ग्रामर सोचोगे, पहला तो आप अपना एंजॉयमेंट, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा. फिर तो आप वही आगे के कैनवस पेंटिंग के ऊपर आ गए या स्कल्पचर्स के ऊपर आ गए. परफॉर्मेंस आर्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा. और जिस दिन आप स्पेस को डिसाइड करते हो या मीडियम्स के ऊपर डिसाइड कर लेते हो, तो इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस आर्ट मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत लिमिट हो जाता है. क्या आप जो कर रहे हो क्या आप खुद सेटिस्फाइड हो? जब आप सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब आपको ज़रूरत नहीं किसी के सामने कुछ और कहना या करना. अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट के ऊपर आप वर्क कर सकते हो, जैसे पॉलिटिकल आर्ट हो गया, साइकोलॉजिकल आर्ट हो गया, सारी चीज़ें. तो उसको एक मीडियम में और इसके अंदर एक ग्रामर में लाने के लिए उसके लिए कुछ तो लिमिट होना पड़ेगा. वो लिमिटेशन वही कह सकता हूँ, या तो आप मीडियम में ला सकते हो या परफॉर्मिंग आर्ट के साथ जैसे है ना कनेक्टिविटी की डालनी पड़ेगी. क्योंकि बहुत पहले इसलिए लोग क्या है परफॉर्मेंस आर्ट को ज़्यादा समझते हैं क्योंकि उसका कोई आउटलाइंस नहीं है या उसको उसी तरह से बिहेवियर में लोग होते नहीं हैं. मान लो कि कोई भी एक जेंडर इशू के ऊपर बात कर रहा है, तो जनरली जो 90% लोग वहाँ देख रहे होंगे कोई जेंडर इशू के बारे में या फेमिनिस्ट के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा. बस वो एक बॉडी को देख रहे हैं कि कैसे मूवमेंट हो रहा है या क्या बातें कर रहा है, समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन उनका अपना जो ब्रेन के अंदर जितनी लाइब्रेरी वोकेबलरीज है उसके ऊपर जज करने की कोशिश करते हैं. दिस इज द डिफरेंस. आई थिंक मैंने बहुत थैंक यू. हेलो, मेरा नाम धनिंदर शर्मा है. मैं कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली से MFA कर रहा हूँ, जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन पेंटिंग है. मैंने पिछले 13 मई को मंडी हाउस पर अपना परफॉर्मेंस किया था, जिसका ऑर्गेनाइजेशन हेक्सी डेक्सी बॉक्स ने करवाया था. इस परफॉर्मेंस में मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो था कि लेबर माइग्रेशन था. लेबर माइग्रेशन मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर वहाँ के लोगों को, वहाँ के सोसाइटीज़ को, अर्बनाइजेशन को डेवलप करते हैं. फिर वहाँ का काम हो जाने के बाद फिर वो दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह पर वहाँ के लोगों को, सोसाइटीज़ को डेवलप करते हैं. इस प्रकार पूरी लाइफ उनकी दूसरों को डेवलप करने में ही लग जाती है. जैसे मेरी जो परफॉर्मेंस की वीडियो में एक जगह पर जाता था, फिर वहाँ के साफ करके वहाँ पर दूसरी जगह चला जाता था. फिर वहाँ पर मैं बैलून को उड़ाता था. अब बैलून उसमें काफ़ी जगह लाइट उसमें,
तो बैलून का उड़ाने का मतलब था मेरा कि उस जगह के लोगों को की लाइफ को खुशियों से भर देना। पर वो कभी भी उनकी लाइफ में खुशी नहीं आ पाती है लेबर्स की, क्योंकि उनकी सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो उनकी जो इमोशन है, उनकी जो लेबर्स की जो आंतरिक इमोशन है, कभी भी खुद को वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। इस तरह से सारी लाइफ दूसरों के लिए जीना ऐसा। तो ये जो आंतरिक जो इमोशंस था उसको मैंने परफॉर्मेंस के ज़रिए दिखाया था। इस परफॉर्मेंस से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ पर। जैसे शतद्रु सोमन सर हैं, उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कुछ फ्रेंड्स जो परफॉर्मेंस में इंक्लूड थे, परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो कुल मिलाकर मेरे खुद के डेवलपमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा शतद्रु सोमन सर को और सूफ़ी इजवारी जी को, जिन्होंने मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका दिया पहली बार। सो थैंक्स फॉर शतद्रु सोमन सर। आपने मुझे काफ़ी कुछ मज़ा आया मुझे करके और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। बहुत अच्छा लगा मेरे लिए ये परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। Hello, I am Anantara and I am a multidisciplinary visual arts student currently pursuing my master's from Jamia Millia Islamia in Delhi. I intended to convey the complexity of embodiment and the resistance and the awareness of the space we occupy. What meanings we give to an image of a body lying down, our simple everyday acts, and how we attach sense and meaning to them. But also how that sense and meaning is dislodged when those acts are performed in an unfamiliar settings. Our performance was set up in a public space at Mandi House, Delhi, and I feel like public spaces are accessible to the people of all sorts of level, and they also create a sense of community, and it also helps the performer to engage with the public with different sorts of interactive performances. It was a great performance, and I would like to congratulate Sufi and Satadru and all other members and participants to successfully pull off this performance in a public space. Hi everyone, my name is Nooreen and I'm a student. I'm doing my master's in painting from Jamia Millia Islamia University. I was part of this performance art event which was held at Mandi House on 13th May 2023, and it was curated by Sufi Yazdan and Satadro sir and organized by Hexidexy, of course. So this event was about involving the public and performing in front of public, and we were around 15 to 20 artists from different fields and we performed together. It was a very interesting and a unique event which I have never done before. So for me it kind of boosted my confidence to another level, and I was very happy to be a part of this event. The performance which I did was about people pleasing. I've heard this phrase a lot of time that if you want to be a people pleaser, you should sell balloons. So I did the same. I went there, I sat on the floor and I blew a lot of balloons, around 22 balloons, and then I gave it to the public as efforts to make them happy. And I just wanted everyone to be happy. I did not care that if they pop it or if they keep it, if they want to play with it or just make fun of it. It didn't matter to me. But what mattered to me was more that I made efforts, and I kind of tried to please people. I don't know why, but I just did it. I felt like I should do it, so I did it. My performance was kind of also linked to the overall theme of this event, because somewhere we all want to be confident about everything, about our body, about how people perceive us, and so this event in itself was kind of very helpful in all these aspects, and I really enjoyed doing it. I thank Hexidexy and Mr. Satadro sir for being so sweet and Sufi Yazdan for giving me this opportunity, for kind of making it very easy for all of us to join in
and feel comfortable around the environment. So thank you so much. सबसे पहले तो मैं सूफ़ी और सलमान का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनके कारण मैं अपना पहला परफॉर्मेंस कर पाया। और मैं यहाँ दिल्ली में सबसे पहले ये शताद्रु का परफॉर्मेंस यहाँ देखा था। तो और मैं यहाँ भी 12 साल से सिर्फ पेंटिंग कर रहा था मैं। तो मेरे को एक इंटरेस्ट आया था इनका परफॉर्मेंस देख के कि इसमें समथिंग कुछ है नहीं, लेकिन कुछ इसमें अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं करके। तो काफ़ी समय से मतलब मैं सोचता रहता था कि मैं करूँगा। कभी अपने दोस्तों को बोलता भी था कि यार कुछ एक ऐसा कुछ मेरे को बेस मिले जहाँ पे मैं कुछ कर पाऊँ करके। तो फिर ये दोनों मुझे, सूफ़ी और सलमान मुझे मिले, तो फिर मैं ना तैयार हो गया। और थोड़ा कन्फ्यूज़न तो था ही क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में था। और ओवरऑल फिर मैं ऐसे खोजते फिर मैं अपना परफॉर्मेंस दिया, जिसमें जो नदियों में कूड़ा कचरा कुछ भी पॉलीथीन वगैरह सब ऐसे फेंक देते हैं और धार्मिक चीज़ों को भी पूजा पाठ करके फेंक देते हैं। तो मैं सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं छोटा सा उस सब्जेक्ट को लेके मैं अपना परफॉर्मेंस किया था। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, क्योंकि और लोगों का परफॉर्मेंस देखने के बाद मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपने भाव को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ करके। और जस्ट आज का ही मैं बताना चाहूँगा कि आज ही मैं ना कपड़ा धो रहा था मैं, और कपड़ा धो रहा था और मैं अपने पैर को वॉशिंग मशीन टाइप यूज़ करता हूँ मैं। जैसे नहाते ना अब हाथ यूज़ करने का मन नहीं करता तो मैं उसमें पैर से ही उसको ऐसे करता हूँ, फिर धो लेता हूँ। तो अचानक मेरे को ना ध्यान में आया कि क्यों ना इसको भी एक परफॉर्मेंस के तरीके से किया जा सकता है और बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे अंदर मतलब ये वाला जो एक माइंड में आने लगा है, तो मैं तो बस यही सोचूंगा कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस बहुत जल्दी से हम लोग का कहीं पर हो। और आई थिंक मैं ना अब कॉन्फिडेंट हूँ कि ना छोटे से सब्जेक्ट में मैं ना अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ मैं बिल्कुल वहाँ रख पाऊँगा मैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत जल्दी एक इवेंट और किया जाए। और बहुत कुछ सीखने मिला आप लोगों से, जो मैं बाकी तो सबकी बातों में वो इतना पॉइंट था, तो सभी की बातों से कुछ न कुछ मुझे बहुत सीखने मिला। और आशा है कि आगे सीखने मिलता रहेगा और ये कंटिन्यू जारी रहेगा, जिसके कारण ना हमारे इंडिया में जो परफॉर्मेंस उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, या किसी के अंदर परफॉर्मेंस करने का एक इच्छा भी है, लेकिन उसको एक स्पेस अगर एक हम जैसे 5-8 लोगों के थ्रू भी अगर मिलेगा, तो मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, तो ये काफ़ी ग्रो करेगा। और मेरे ख्याल से इसका परफॉर्मेंस आर्ट काफ़ी ऊपर तक के जाएगा इंडिया में भी। थैंक यू। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद चाहता हूँ। सर के वजह से मैं आज उस टाइम मैं परफॉर्मेंस कर पाया था। तो और भी जने हैं ऐसे, सलमान भाई, तौसीफ भाई और हार्दिक भाई, बहुत जने हैं, इनके वजह से मैं, और सूफी भाई हैं, बहुत जनों से कर पाया था। तो मैंने जो करा था वो मतलब थोड़ा यूनिक था, पानी के ऊपर था। मतलब पानी का कोई मज़हब नहीं होता, तो ऐसे हिंदू मुस्लिम होती रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब पानी का कोई मज़हब नहीं है। तो सेट और हाँ कैसे किया उसको, मतलब कैसा लगा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड ऐसे आगे करता रहूँगा। मेरा जो परफॉर्मेंस का विषय था वो ईगो था। मेरा ऑब्जेक्ट ईगो,
एंड मेरा 2 टॉपिक्स होता है मेनली, जेंडर एंड इकोलॉजी। नाउअडेज आई एम वर्किंग ऑन इकोलॉजी। तो इस परफॉर्मेंस को मैं डेडिकेट किया था जेंडर के ऊपर। ईगो, जैसे ईगो हमारा जब हार्ट होता है किसी बंदे को तो बहुत ठेस पहुँचते, तो वी आर वेरी अपसेट। तो इस ईगो को लेके मैंने परफॉर्म किया था। आपको हर टाइम एक मतलब समाज एक निर्देश देता है बॉडी शेपिंग के लिए, आपका हाइट छोटा है, आप मोटा हो, सो मेनी थिंग, सो मेनी टैबूज, नॉर्म्स एंड जेंडर। तो उसको जो सप्रेशन है उसकी मेरा मेन मुद्दा था, तो वही मैंने करा पूरा परफॉर्मेंस के अंदर। आपने देखा होगा मेरा पहले था घूम के, फिर एक लिखा, फिर उसको काटा कैंची उससे, फिर उसको चिपकाया, फिर वो करा। But I'm not going to talk that, but I'm coming to Umesh's point. Umesh was very raising a very nice point. Performance art is time based art, ठीक है। एक टाइम के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम, और इसमें और एक चीज़ बोलना है, परफॉर्मेंस में टाइम आप कितना दिखा रहे हो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। टाइम का वैल्यू है, सबसे पहले टाइम का वैल्यू है। आप यहाँ पे बैठे के पूरा दिन नहीं बिता सकते, यू हैव सम वॉट। सो आपके पास एक टाइम का इम्पोर्टेंस है। तो आप लंबा परफॉर्मेंस करोगे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। उसके लिए भी जगह है, जैसे निखिल चोपड़ा करता है 3-4 दिन 5 दिन, शुमिता है इंडिया में, बट उसका माहौल और सब कुछ अलग होता है। स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सी स्पेस पे करो, कौन सी स्पेस पे टाइम यूज़ करो, ठीक है। टाइम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। और कहाँ पे कर रहे हो, और कहाँ पे कर रहे हो, इसके साथ और एक चीज़ आ जाता है, व्यूअर नेगोशिएशन। आप जहाँ पे भी करोगे, आपके आसपास को व्यूअर एंड द फिजिकल स्पेस, उसके साथ आपका नेगोशिएशन क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको कैसे यूज़ करो। चट्टान पे करो, जैसे सॉलिड चट्टान था, उसने पानी यूज़ किया था, पानी का स्टेप दिखाया था, तो चट्टान को हम कैसे यूज़ कर पा रहे, क्योंकि जो जहाँ पे अगर हम उसी परफॉर्मेंस को इधर करें तो हमारा पूरा चीज़ चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पेस बदल गया, पूरा गैमट बदल गया, वाइब बदल गया, एम्बियंस बदल गया। तो एम्बियंस, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम, स्पेस, बॉडी, इवन द बॉडी, कैसे बॉडी को आप रोल कराओगे, ठीक है, व्हाट बॉडी गोइंग टू परफॉर्म, जैसे अभी आप किशोर ने बताया। तो इट्स वेरी नाइस पॉइंट। तो these are the more things we can more enlightened to do that, okay, and we hope we have a couple of event coming up, let's see। हमने शायद लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने मिलके ऑनलाइन परफॉर्मेंस किए थे, कम से कम 15 डेज़ का 21 डेज़ का परफॉर्मेंस प्रैक्टिस था। बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे, शायद ये भी किए थे परफॉर्मेंस। बहुत सारे आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेंट किए थे जो ऑनलाइन पे ही था। बहुत सारे वीडियोस मेरे पास कलेक्ट है, और उसके बाद मैंने कंटिन्यूशन में बहुत सारे परफॉर्मेंस आर्ट के ऊपर ही इवेंट किया है। एक कलाधाम में के अंदर मैंने एक फ्लॉक ऑफ आर्ट करके ग्रुप में ही 3-4 आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस दिया, जैसे इंद्र सलीम था, मुरारी भी था, एक और लड़की सुचिता करके थी, परफॉर्मेंस आर्ट किए थे। मैं सब डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है। उसके बाद मेरा एक नेटिव प्लेस है जहाँ पे मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ मैं फेस्टिवल करता हूँ हर ईयर, और उसमें सारे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट को ही बुलाता हूँ, कोई पेंटिंग आर्टिस्ट या उधर को नहीं बुलाता हूँ। शतद्रु एक बार में विटनेस थे, मेरे ख्याल से 2019 में गए थे ये, तो उसमें सारे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट को बुलाया था और वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं। और वहाँ पे जो भी फंड जनरेट होता है वो वहीं के लोकल कम्युनिटी से, लोकल लोगों से जनरेट होता है। फिर 2022 में हमने दोबारा नवंबर में परफॉर्मेंस आर्ट के किए थे, जिसमें डिम्पल दीदी वगैरह गए थे और नैन्सी वगैरह गए थे, इंद्र सलीम भी गया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग और जाते रहते हैं, मैं मेरे फेस्टिवल से करता हूँ। तो इस बार मैंने ट्राई किया है, और मेरे घर समुद्र किनारे से बहुत पास है, 2-3 किलोमीटर्स में है। तो मैंने एक 10 एकर्स की एक स्पेस लिया हुआ है, मेरा अपना ही लैंड था जो मुझे पता नहीं था, हमारी फैमिली को भी पता नहीं था, तो वो मिल गया। उस लैंड पे मैंने बैम्बो फॉरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, बैम्बो ऑलरेडी फार्म हो चुका है, तो मैं आई थिंक 2-3 ईयर्स में वो बैम्बो का फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं स्पेशली परफॉर्मिंग आर्ट का म्यूज़ियम, परफॉर्मेंस आर्ट का म्यूज़ियम डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें वीडियो परफॉर्मेंस भी होगा और डॉक्यूमेंटेशन जो भी किया हुआ है वो सारे वहाँ कलेक्ट होगा।
और टाइम टू टाइम फेस्टिवल ओनली परफॉर्मेंस आर्ट के ऊपर होगा, जहाँ पे वहाँ पे आर्टिस्ट वर्क करेंगे, जैसे मोरनी हिल पे करता है। तो इस टाइप के मेरा टारगेट है। मैं फ्यूचर में यही प्लान किया हुआ है कि मैं इसे वहाँ पर करूँगा, और रेसिडेंसी सारी चीज़ें जो भी होगा वो वहीं पर परफॉर्मेंस आर्ट से रिलेटेड होगा। एग्जीबिशन, स्टॉक, इनडायरेक्टली म्यूज़ियम ही है, वो कलेक्ट होकर रहेगा। और 10 एकड़ स्पेस के अंदर मैंने भी स्पेस डिसाइड किया हुआ है, मतलब एक बनाया गया है कि जहाँ पर जो एक जोग्राफी को कैसे परफॉर्मेंस आर्ट यूज़ करे वहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो वो स्पेस भी एक म्यूज़ियम हो जाएगा। कोई एक वॉल स्पेस नहीं है म्यूज़ियम का, वो एक उतने एरिया के स्पेस के अंदर जो भी आर्टिस्ट जो कुछ काम करेगा वो एरिया उसी के नाम पे हो गया, तो वो वहाँ कलेक्टेड, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रॉप्स वहाँ पे यूज़ किया है या कुछ भी किया, वो उसी एरिया उसके लिए फिक्स हो गया। तो इस तरह से मेरा प्लानिंग है, क्योंकि उसके बाद परफॉर्मेंस आर्ट को हम शूट करते हैं या टीवी में देखते हैं या किसी अदर डिवाइस से देखते हैं, तो फिर परफॉर्मेंस का तो कोई एसेंस नहीं है। तो इसलिए मेरा म्यूज़ियम का यही टारगेट है, यही है, या म्यूज़ियम का मेन एम यही है कि हाँ ज़रूरी है कि मैं उसको इनवाइट कराऊँ, हाँ एक्ट करेगा वो। मेरा भी उस लेटर के अंदर वो भी लेता है, मैं हर वक्त लेटर भेजता हूँ, जब लिखता हूँ कि आपको यहाँ आना है, परफॉर्मेंस करना है तो आपके चॉइस है, नहीं करना तो कोई बात नहीं, क्योंकि चॉइस भी तो होना चाहिए साथ में कि आप मेरे कहने से आ रहे हो और परफॉर्मेंस दोगे, मैं तो आपके ऊपर मतलब जैसे दबाव डाल रहा हूँ इनडायरेक्टली, तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, वो एक्टिंग हो गया। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आपको टाइम, मेरा टाइम 2 डेज़ का है या 3 डेज़ का है, आपको लगता है परफॉर्मेंस कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस का ऐसा एक बहुत सारे क्राइटेरिया डेवलप किया है कि परफॉर्मेंस आर्ट के लिए, और एक म्यूज़ियम को जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो के रहे उस एरिया पे, कुछ जगह पे जैसे कैमरा वगैरह चारों तरफ रहेगा जहाँ पे शूट किया जाएगा, उसका लाइव शूट हो सकता है, लाइव प्रेजेंटेशन हो सकता है, और साथ में डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो पार्ट तो रहेगा ही, थोड़ा सा अलग जगह पे उसको शूट होगा जिसके ऊपर पढ़ सके, टेक्स्ट हो और आर्टिस्ट के बहुत सारे परफॉर्मेटिव फोटोग्राफ्स हो, वीडियोस हो, लेकिन वो एसेंस उस जगह पर ऐसे ही रहे। कुछ भी ना यूज़ किया हो तो स्पेस उतना ही रहेगा जहाँ पे उसने यूज़ किया, तो उसके नाम पे डेडिकेटेड है। तो ये मेरा एक जिसे कहते हैं एक हाँ प्लान है, ऑलरेडी प्रोसेस में हो चुका है। Yes. I think we should conclude this meeting. Yes. Sure. Just one point. First of all, जो young performance artist है उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा, there is multiple place to see the performance art. Have to see the performance art to understand. नहीं देखोगे तो समझ ही नहीं आएगा। Performance art एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। We have a very good archive. We Rexy Box have a very good archive, video archive. You can go through and shuffle, and you can see each country how they perform, how their vocabulary, how their object, they choosing their object. जब तक ये नहीं देखोगे नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोगों को लगता है परफॉर्मेंस आर्ट हो गया, बट यू नो 2-3 प्लेसेस लाइक मेक्सिको, चाइना, लाइक काइकिंग एंड गोस्टो बाजार, उनका जब भी मैं परफॉर्म करने आता, जो भी परफॉर्म करने आता, क्या डिमांड होता है, वो तो खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड करता है, बोलता है आफ्टर योर परफॉर्मेंस वॉट एवर यू यूज़ यू कैन डोनेट अस। मैंने पूछा क्यों भाई, उन्होंने बोला हम इसको म्यूज़ियम बनाएंगे और इसको ऑक्शन करेंगे आपके फ़ोटो के साथ। तो मुझे अच्छा लगा आइडिया। तो यू हैव टू ऑल्सो कैरी द लेगेसी। तो आप लोगों को जो जब परफॉर्म करोगे, जो भी कपड़े पहनोगे वो अजीज़ है। मैं एक कहना चाहता हूँ, अजीज़ है, ये नहीं कि ऐसे ही उठा के कर दिया। डी हैव टू बी वेरी गिव द इम्पोर्टेंस, ठीक है। उस कोई नहीं कि आपके जीन्स पहन के करना है, वो पहन करना है, बट वट एवर द कॉस्ट्यूम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। All props are so Yes. important. Yeah. Every material is so Object. important. Yeah. ठीक है। Thank you so much to everybody to join us. Now Sufi going to end. Thank you all of you for your words and suggestions. I think we have, yes, actually we are planning to do our next event in Delhi, but this time we will do this in a gallery, maybe indoor performance. And as we have discussed the circumstances and possibilities for performance artists and young students, so I would say that if you are interested in this practice, then you should join our community
to learn and explore this not new but limited to very few artists. So you should try this medium of expression, and yeah, that's all. Thank you all of you. Thank you Umesh sir, Satadru sir, Salman bhai, Kishore sir, Samad, Hardik, Nitesh, Salim, and there were few performance artists. They were unable to join the meeting, but I hope they will join us in the next event. Thank you all of you. Thank you.